Assalamualaikum students, welcome to the next lecture of network security. In previous lectures, we have done the TCP IP security overview, as well as we have seen that what kind of security can be enabled at the application layer. Specifically, we have discussed the content of email security and one standard that is called PGP that was pretty good privacy. We have seen that how this standard can help us to add the digital signatures, compression, data integrity, confidentiality, and authentication of data. And this is a full-fledged solution for today's email systems. In today's lecture, we will discuss that what is another security standard that is called S-MIME, as well as we will see that how we can enable the DNS security, that is domain name security, domain name system security. So let's start with the standard that is called S-MIME. So we have seen that at the application layer, there are different services, and for every service, we need separate security protocol and standard and solution. So right now we are discussing the email security, and this is the second standard that is called S-MIME, that is secure multi-purpose internet mail extensions. This standard was originally initiated by the RSA Data Security Incorporation in 1995. So आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि PGP इसके बाद आया था, ये पुराना स्टैंडर्ड है. MIME provided support for varying content types and multi-part messages. So MIME के अंदर ये ability है कि सिर्फ टेक्स्ट को नहीं बल्कि वीडियोस, ऑडियो और डिफरेंट जो इमेजेस हैं या डिफरेंट तरह के मैसेजेस होते हैं, कंटिन्यूअस और वेरिएबल और डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस, उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसके 3 वेरिएंट्स हैं. RFC 2630 से लेके 2634 इस स्टैंडर्ड का नाम है. That provide the encoding of binary data to textual form and textual data to binary form. So this is the property of this standard. S-MIME added security enhancement, as well as this allow flexible client-to-client security through encryption and signature. So we have different applications when there is no server and like peer-to-peer communication, and we can say that application to application level link, and this standard provide the security for C2C applications as well. And this standard is widely supported by Microsoft Outlook, Netscape Messenger, Lotus Notes, etc. So आप लोगों ने ये देखना है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर PGP और S-MIME की जो है वो कहाँ पर लेयर आएगी. So पहले TCP/IP हेडर है, then SMTP प्रोटोकॉल, HTTP भी है, उससे ऊपर आप देखें कि PGP MIME यूज होगा या S-MIME यूज होगा. तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन होगा ईमेल सिक्योरिटी के लिए, वो दोनों ही प्रॉपर्टीज हमें दे रहा होगा, PGP MIME, और जो पुराना सिस्टम था उसमें S-MIME यानी सिक्योर MIME. So आजकल जो हम लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाला ब्लॉक यूज कर रहे हैं जिसमें PGP MIME के साथ हम यूज करते हैं. Okay, so what are the functions of S-MIME standard or protocol? First, it enveloped the data. Enveloped data का मतलब क्या है कि इसमें ओरिजिनल मैसेज होगा प्लस उसके अंदर उस मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट होगा जो कि हैश फंक्शन से गुजारा होगा, और उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा विद द प्राइवेट की ऑफ सेंडर. 3 चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हमारे पास जो है वो 3 चीजें होंगी. पहला होगा डिजिटल एनवेलप के कंटेंट क्या हैं. सबसे पहले होगा हमारे पास मैसेज, देन वी विल हैव द मैसेज डाइजेस्ट ऑफ दिस मैसेज. दैट मीन्स इसको हमने हैश फंक्शन से गुजार के इसका हैश फंक्शन जो वैल्यू है वो जनरेट की हुई है.
प्लस इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा by using the private key of sender। मैं इसको A लिख रही हूँ, यानी एलिस की प्राइवेट की के साथ इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। So ये चीज आपने जहन में रखनी है। Encrypted content and associated keys, ये एक फीचर है जो ये प्रोवाइड करता है। देन साइंड डेटा, साइंड डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये सिग्नेचर्स जो हैं ये सिग्नेचर जो है ये इनकोडेड मैसेज के साथ जो साइंड डाइजेस्ट है, लाइक ये जो प्राइवेट की के साथ आपने मैसेज डाइजेस्ट को साइन किया हुआ है, उसके साथ ही साथ जो मैसेज है उसको भी साइफर टेक्स्ट में क्रिएट करके विद द प्राइवेट की ऑफ जो प्राइवेट की ऑफ सेंडर है उसके साथ इसको इनक्रिप्ट किया जाता है। तो ये भी फीचर ये प्रोवाइड करता है। देन क्लियर साइंड डेटा, दैट मींस क्लियर मैसेज भी है और फिर उसका मैसेज डाइजेस्ट भी कर रहा है। साइंड एंड इनवेलप डेटा, दैट मींस नेस्टिंग ऑफ साइंड एंड इनक्रिप्टेड एंट्रीज। आप समझे कि ये बिल्कुल इसका फंक्शन वैसे ही है जैसे कि हमने पीजीपी में पढ़ा था। So you should note down that मैसेज डाइजेस्ट की सिक्योरिटी, मैसेज की सिक्योरिटी, प्राइवेट की के साथ इंक्रिप्शन जो है वो उसमें जनरेट की जाती है। बट देयर इज वन स्लाइट डिफरेंस। आपने देखा कि जब हमने पीजीपी के अंदर ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा इंटेग्रिटी सारों को जब इंक्लूड करके एक सेंट्रल डायग्राम बनाई थी, उसके अंदर हमने कंप्रेशन ऐड की थी। जो डिफरेंस है पीजीपी और एसमाइम में वो कंप्रेशन का है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस उसके अंदर ये है कि वहां पर हमें सेशन कीज भी हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एसमाइम के अंदर हम सेशन कीज को जनरेट नहीं कर सकते। So, जितने भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है एसमाइम के अंदर वो यहाँ पर इनलिस्ट हुए हुए हैं। लेट्स डिस्कस कि ये कौन कौन से एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है। डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट करने के लिए वो DSS एंड RSA यूज करता है। हैश फंक्शन के लिए SHA एंड MD5। सेशन की के लिए सेम एल्गोरिथम्स है एल्गेमल एंड RSA। मैसेज इंक्रिप्शन के लिए AES, ट्रिपल एस, RC240 एंड अदर्स। मैसेज इंक्रिप्शन वो उसके पास काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। एंड देन वी हैव फॉर मैक message authentication code or hashing, they use this algo use HMAC with SHA1. Have process to decide which algorithm to use. That means there could be different combination of different algorithms to provide the security, but we can see that there is no compression and there is no session keys generation for this algorithm. So what is the structure of SMIME message? SMIME secure MIME entity with the signature encryption or both. यानी signature भी add करेगा, यानी private key of sender and the encryption of that message. Forming a MIME wrapped PKCS object, एक wrapped यानी enveloped, encapsulated एक object create करेगा MIME, जैसे कि डिजिटल इनवेलप के बारे में भी आपको बताया गया था। और इसमें डिफरेंट कंटेंट होंगे, इनवेलप डेटा होगा, साइन डेटा होगा, क्लियरली साइन डेटा होगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट होगी, एंड देन वी हैव सर्टिफिकेट ओनली मैसेज। ये 5 चीजें आप देख लें, इनवेलप डेटा, साइन डेटा यानी प्राइवेट की ऑफ द सेंडर के साथ साइन किया हुआ डेटा है, क्लियर साइन डेटा जिसको पीछे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट होगी, सर्टिफिकेट भी इसमें इस्तेमाल होंगे, यानी डिजिटल सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। डिजिटल जो सर्टिफिकेट हैं, जो एसमाइम में सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा तो कुछ इस तरह से होगा। एसमाइम जो है वो यूज करता है X.509v3 सर्टिफिकेट्स। मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि डिजिटल सर्टिफिकेट विद X.509 क्या होते हैं, और एसमाइम जो है इन्हीं सर्टिफिकेट्स को इस्तेमाल करता है। मैनेज using a hybrid of a strict X.509 CA hierarchy and PGP's web of trust. So जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ हम PGP की भी सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे और एक हायरार्की बनेगी X.509 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट लेवल के सर्टिफिकेट्स की, यानी सेंडर टू सेंडर, नोड टू नोड, राउटर टू राउटर, देयर कुड बी डिफरेंट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, डिजिटल सर्टिफिकेशंस, exchange and development and registration and verification.
Each client has a list of trusted CA certificate, certification authority के multiple certificates होंगे जिसके साथ भी वो बात करना चाहता है उसके, and on public and private key pairs and certificates. So क्योंकि ये RSA पे public की cryptography पे depend कर रहा है इसका जो message sharing है, message exchange है, तो इसीलिए आपको पता है कि हमें public और private key pair भी चाहिए होंगे. Certificates must be signed by the trusted CAs. आप लोगों को जब सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के बारे में डिटेल में बताया गया था कि सर्टिफिकेशन कैसे क्रिएट होता है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का क्या काम है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का क्या काम है, तब आपको ये बताया गया था कि ये साइन कैसे होंगे. तो ये भी जहन में रखें एज ए क्विक रिवीजन इस बात की, वो यही कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के साइन करने का मतलब ये है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, डिजिटल सर्टिफिकेट, दैट शुड बी encrypted by using the private key of CA. Because if any person want to use those certificates, they need to decrypt it by using the public key of certification authority. So this is a key point here that we need this certification process. So that is enough about the email security. Email security में हमने दो प्रोटोकॉल, दो स्टैंडर्ड्स देखे हैं, PGP and SMIME, और इन दोनों के बारे में डिफरेंट कैपेबिलिटीज और किस तरह से ये मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं और किस तरह से मैसेज एक्सचेंज करते हैं, सर्टिफिकेशन कंप्रेशन कैसे होती है, डेटा की इंटेग्रिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है, ये सब चीजें हमने देख ली हैं. तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया. नेक्स्ट लेवल की जो सिक्योरिटी है वो एप्लीकेशन लेयर ही की सिक्योरिटी का सेकंड कंसर्न है, दैट इज कॉल्ड द DNS सिक्योरिटी. DNS का सभी को पता है, डोमेन नेम सर्वर सिक्योरिटी. हमें ये पता है कि DNS का काम क्या है. उसका काम ये है कि किसी भी URL के अगेंस्ट कोई IP एड्रेस जो है वो रजिस्टर करना, यानी हर URL जो भी पड़ा हुआ है हमारे पास, सपोज google.com, ue.edu.pk एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट.pk एटसेट्रा, जितने भी URL हैं उन सब के अगेंस्ट एक एक IP एड्रेस जो है वो रजिस्टर किया जाता है. अब ये जो सर्वर है, डोमेन नेम सर्वर, ये क्योंकि इसका काम क्या है कि हम जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको एक्यूरेट वेब पेज के ऊपर जो है वो पहुंचाया जाए. स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अब मेरे पास एक क्लाइंट है, उसने www.ue.edu.pk पे अपने ब्राउजर के अंदर रिक्वेस्ट की है. अब ये रिक्वेस्ट जो है वो DNS के पास जाती है और वो DNS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी इस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको इस वेबसाइट के पास ले जाए, ये जो UE की वेबसाइट है, और उसके अगेंस्ट जो IP एड्रेस है एक्चुअली उसके पास लेके जाए और ये पेज जो है फिर लोड हो जाए क्लाइंट के जो सिस्टम है उसके अंदर. So, होता ये है कि अगर बहुत सारे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक बताया था DNS कैशे पॉइजनिंग and there was spoofing and another attack that is called spoofing. So होता क्या है कि हमारे पास एक और डिफरेंट यहाँ पर अटैकर होता है जिसका काम ये होता है कि वो इस DNS सर्वर को हिट करे और इसके अंदर जितने भी, जब भी ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो उसको उठा के इस वेबसाइट के पास लेने की बजाय वो किसी और फेक वेबसाइट जो यहाँ पर UE के अगेंस्ट बनी हुई है उसके पास जो है वो लेके चला जाए. ये फेक वेबसाइट है, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं फेक. सो कैशे पॉइजनिंग इज वन प्रॉब्लम, एज वेल एज एक प्रॉब्लम और भी ये है कि वो उसको स्पूफिंग कर सकता है, किसी और वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकता है. सो अब मसला ये है कि हम इस जो DNS सर्वर है इसकी सिक्योरिटी कैसे इनेबल करें. सो अभी हम यही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी की जिम्मेदारी है तमाम वेबसाइट्स को लोड करना, तमाम वेबसाइट्स को जो है वो आपके सिस्टम तक सिक्योरिटी के साथ पहुंचा देना. I'm going to share one of my personal experience back in I guess 92 or 93. हम लोगों के के कंप्यूटर के अंदर जब मैंने लिखा google.com और जब मैंने ये हिट किया तो मेरे पास जो पेज खुला वो एज इट इज गूगल का पेज था, बिल्कुल, यानी यहाँ पे गूगल लिखा हुआ था और गूगल के साथ इसी तरह जो सर्च बार बनी होती है ये बना हुआ था. ओके,
जब मैंने इस पे कुछ भी चीज़ सर्च करी थी तो वो मुझे किसी अजीब सी वेबसाइट के ऊपर ले जाता था जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट अजीबो-गरीब से कंटेंट लिखे हुए हैं और लैंग्वेज भी ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ ट्राई की, तो यही होता रहा। फिर बहुत टाइम के बाद मैंने देखा कि जब भी मैं इस google.com की वेबसाइट के ऊपर हिट करती हूँ, तो वो मुझे किसी और सर्वर के ऊपर ले जाता है और उसमें बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस था उसकी यूआरएल में, दैट वाज DGOOGLE.com, यानी एक ओ का फर्क था यहाँ पे। और हो क्या रहा था कि जब भी मैं इस गूगल के ऊपर रिक्वेस्ट भेजती हूँ, यानी मैं गूगल को एक्सेस करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो अटैकर था यहाँ पर एक्स लिख बैठा हुआ है, इस अटैकर ने ये मुझे डाइवर्ट कर देता था इस जगह पे, यानी स्पूफिंग का अटैक हो रहा था मेरे पे और मेरे सामने जो है वो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपको ये पता ही है कि हम ब्राउजर को बहुत कम देखते हैं, हम देखते ही नहीं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। लेकिन आजकल ये काफी हद तक कम हो चुका है। ये अटैक्स काफी हद तक कम हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि डीएनएस का बेसिक वर्किंग और इसमें जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी सिक्योरिटी को हम कैसे एनेबल कर सकते हैं। So students, DNS is essential. We already knew that. Whenever we want to access any website, we need to, this specific domain name, and we need that website to load over at our server or at our system. So without DNS, no one can use the domain names like ue.edu.pk. इसका मतलब ये है कि हाँ, जितने भी domain name है उन सब के लिए we need to remember the IP address, and that is impossible. That we can learn so many, we can remember so many IP addresses for each server. So this is one blessing that we have domain name or URL, and that's why we can easily access those servers. So almost every internet connection begin with the DNS resolution. मैंने आपको बता दिया, पहले भी काफी अच्छे तरीके से समझाया है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ अटैक्स जो रियल टाइम हुए थे, ताकि उस चीज को आप समझ पाएं। तो हमारे पास जो रियल टाइम अटैक हैं उनमें 2001 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के डीएनएस सर्वर्स के ऊपर अटैक हुआ था, ये लिखा भी हुआ है, जनवरी 25 2001 अटैक नॉक्स आउट वेब माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट्स। और आप देख रहे हैं कि नेटवर्क अटैकर्स overwhelmed Microsoft connection to the internet on Thursday, causing traffic to company's major website to slow to a crawl. Crawl is actually the Google crawler और web crawler, जिसका काम क्या होता है कि उस वेबसाइट तक पहुंचना। तो जब अटैक हुआ है तो डीएनएस में जब भी कोई एक्चुअल यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा, तो वो क्योंकि उसने पूरे सर्वर की तमाम सर्विसेज को इस्तेमाल किया हुआ था, कोई नया जो यूजर है, नया क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ ही नहीं सकती, इसीलिए इसने स्लो डाउन कर दिया। इसी तरह इसको पढ़ भी लेते, इसकी रीजंस क्या क्या थी। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता था तब। Microsoft network went through a single switch at that time. 25% of 1000 largest companies had a centralized DNS architecture at that time. Companies moved to distributed architectures, यानी ये जो टाइम आपको बताया गया इन 2001, वहाँ पे DNS सर्वर सेंट्रलाइज्ड होता था। फिर जब ये अटैक आया है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने में और इसको आइडेंटिफाई करने में काफी टाइम लग गया, तो फिर ये इस चीज का सोल्यूशन ये हुआ कि इसको सेंट्रलाइज सर्वर की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स के अंदर लेके जाया जाए। इसके बाद 2002 के अंदर भी जो है अगेन अटैक हुआ ऑन डीएनएस रूट सर्वर्स, मैसिव डीडीओएस अटैक। आपको पता है ये डीडीओएस अटैक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, हिट डीएनएस रूट सर्वर। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक फायदा तो ये होना चाहिए था कि अटैकर जो है वो उसको सर्वर्स के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए हैं, उन तक वो पहुंच ना पाए। लेकिन 2002 यानी आप देख रहे हैं कितना ज्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट लेकर आए, साथ ही जो है वो अक्टूबर 23 2002 के अंदर ये अटैक जो हो गया, अटैक ऑल 13 रूट सर्वर सिमल्टेनियसली। और इसका तरीका क्या उन्होंने अपनाया था, आईसीएमपी फ्लड किया गया था 900 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी इतने ज्यादा पिंग पैकेट्स भेजे गए थे डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस के ऊपर, और इसके ऊपर जो सिंक फ्लडिंग थी वो ऐड की गई थी ताकि तमाम जगहों पे सर्वर जो है वो बिजी और एक्टिव रहे। उसके बाद 2007 में भी एक अटैक आया था रूट डीएनएस के ऊपर, 6 root server attacked from Asia, volume 1 Gbps per server, bogus DNS request आ रही थी, only 2 were affected because they did not yet have any cast.
configured. So Anycast was the solution provided during the 2002 and 2007, and this is your homework, or you can say that is your self-learning that you should try to learn that what is this method, that Anycast. And the Anycast allow one IP address to be shared by many different servers, and traffic automatically goes to the closest working server. So this is more like a distributed and multi-dimensional relationship. So अब ये नहीं है कि एक जो अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो सपोज मुझे अमेरिका की किसी वेबसाइट से सर्वर से कोई डेटा चाहिए तो मुझे डायरेक्टली उसी मुझे सर्वर जो है वो वहां पर लेके जाए, बल्कि ऐसा नहीं है। अब क्या है कि वो जितने भी डिफरेंट सर्वर हैं उनका बैकअप, उनके रेप्लिकास जो है वो क्रिएट किए गए, और उसके जरिए से क्या हुआ कि अब जो आप लोगों के जो डीएनएस अटैक्स हैं उनको एक बाउंडेड लोकेशन के अंदर आप रख सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि किस जगह से आया है ये अटैक, और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पिंग रिक्वेस्ट को कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से इससे ज्यादा पिंग रिक्वेस्ट ना आए या हिट ना आए। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये एग्जांपल, ये आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए से आपको दिखाई गई है। ये डीएनएस रूट के ऊपर आप देख रहे हैं ये सारे जो रेड सिंबल्स हैं ये एक्चुअल यूजर्स हैं, एक्चुअल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करनी थी, और ये जो डीएनएस रूट के ऊपर अटैक किया गया ये वो जिसकी वजह से ये सारी सर्विसेज जो थी रूट के ऊपर वो ब्लॉक हो गई थी। इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि जितने भी ये वाले क्लाइंट्स हैं इनको सर्वर की जो सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल करनी नहीं दी जा रही थी। So solution क्या है? Simplest solution, again we have a standard that is called DNSSEC, that is Domain Name System Security Extension. जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल की सिक्योरिटी के लिए PGP आया और SMIME आया, इसी तरह डोमेन नेम की सिक्योरिटी के लिए सर्वर के लिए हमें जो है वो ये वाली एक्सटेंशन जो है वो एक ऐड करा दी गई, दैट इज अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। So keep this thing in your mind that what could be the possible attacks on the DNS. पहला मैंने आपको बताया था DNS spoofing, and second आपको ये बताया था DNS cache poisoning। ये दो मेजर अटैक्स हैं जो कि DNS के ऊपर होते रहे हैं। So ये स्टैंडर्ड क्या करता है? इन DNS SEC standard, that is Domain Name System Security Extension Standard, every DNS zone has a public and private key pair. So solution यही आया जो कि public private key asymmetric encryption है, वही solution है। All information sent by the DNS server is signed with the originated zones private key. अब zones यानी आप समझें कि एक पूरे environment को छोटे छोटे zones में segmentations में divide कर दिया गया है। अब वो जो segmentation है उस segment के अंदर एक zone owner होगा। अब zone owner could be any server, can be a combination of different server। अब वो जो सर्वर है उसकी जो प्राइवेट की होगी उसके जरिए से आपको जो डीएनएस प्रोवाइड किया जाएगा वो दैट जोन जो ऑनर है दैट इज द रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ एवरी यूआरएल दैट हैज बीन शेयर्ड टू यू। ये स्टैंडर्ड जो है ये इसमें जोन क्रिएट होना और साथ ही साथ जोन के बाद सेकंड चीज आपको बताई गई है कि उसकी प्राइवेट की के जरिए से इस सर्वर्स को ओरिजिनेट करना। डीएनएस क्लाइंट्स नीड टू नो द जोन्स पब्लिक की टू चेक द सिग्नेचर्स। अब जो भी क्लाइंट है जिसको भी सपोज पाकिस्तान के अंदर हमारे 3 जोन बने हुए हैं, अब जोन में बना के भी आपको दिखा देती हूँ। सपोज पाकिस्तान में हमने 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, इन लाइक ABC मेरे पास जोन है। हर एक जोन का वी हैव वन ओनर। अब मैं इस ओनर को O ऑफ A कह देती हूँ, जो ओनर ऑफ B है उसको ओनर ऑफ B कह दूंगी, और ओनर ऑफ C जो है उसको ओनर ऑफ C कह दूंगी। अब जोन A के अंदर सपोज यहाँ पर एक क्लाइंट है, उसको कुछ सर्विस चाहिए, उसको कोई सपोज ये वो यूई की वेबसाइट ही खोलना चाहता है, तो यूई का जो सर्वर है उसके पास इसने भिजवाना है, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी टुवर्ड दी ऑनर ऑफ दिस A सेगमेंट। अब ये जो रिक्वेस्ट है इसको ये रिक्वेस्ट जो है ये ओनर ऑफ जो ये A लिखा हुआ है यहाँ पे इस जोन के ओनर के पास जाएगी। ये जो जोन का ओनर है वो DNS के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा,
डीएनएस जो है वो यूई के पास लेके जाएगा और यूई से वो क्या करेगा कि ये जो डीएनएस का सोल्यूशन लेकर आ रहा है इस क्लाइंट के लिए, उसको वो इनक्रिप्ट करेगा। यानी मैं अगर आप लिखूं कि यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट, इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा बाय यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ ओनर ए। इसका मतलब ये है कि अगर क्लाइंट ये चाहता है, ये जो दिस इज द क्लाइंट, इसको मैंने हाईलाइट किया है, क्लाइंट अगर ये चाहता है कि वो इस सर्विस को इस्तेमाल करे, जो वेबसाइट है ये यूई की यहाँ पर लोड हो जाए, तो वो क्या उसे करना पड़ेगा, उसको पब्लिक की जो है वो ऑनर की पब्लिक की के जरिए से इसको डिक्रिप्ट करके खोलना पड़ेगा। यानी अब आपने क्या किया है कि आपने एक सिक्योरिटी ऐड कर दी है। ये इससे इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे यही लिखा हुआ है, डीएनएस क्लाइंट नीड टू नो द zone's public key to check the signatures, to identify, to check that what is the actual IP address of this website. Client may be pre-configured with the public keys of all the top level domains or root DNS. That means client can have different kind of hierarchical public keys of all the domain name, whatever whatever the client will need. So let's discuss that what is the DNSSEC lookup process. When your computer goes to ask the root zone where it can find .com, the reply is signed by the root zone server. जब भी किसी की रिक्वेस्ट जाएगी तो वो सर्वर के जो है प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट होकर जाएगी, इसीलिए साइंड लिखा हुआ है. Computer checks the root zone's signing key and confirms that it is the legitimate root zone with true information. That means for browsing any information, our system will check and confirm the authentication or authority of any this server that is called the root zone server. In reply, the root zone provide the information on the signing key of .com Zoom server and its location, allowing the computer to contact the .com directory and ensuring it is legitimate. That ये बिल्कुल जो ड्राइंग मैंने भी आपको बनाई थी, बना के बताई थी, उसको अपने जहन में रखें. यानी अब उस जो जोन का ओनर है उसने डोमेन नेम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट कर दी है और डोमेन नेम सर्वर ने उस जोन को पहले कंफर्म किया, चेक किया कि क्या आया वो बिल्कुल एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है, एक लेजिटिमेट ओनर है. अगर वो है तो फिर वो उसको प्रोवाइड करेगा उस वेब पेज का एड्रेस. The .com directory then provide the signing key and information for ue.edu.pk, allowing it to connect with the google.com and verify that you are connected to the real ue.edu.pk as confirmed by the zone above it. So इस लाइन से हमें ये बात पता चलती है कि ना सिर्फ आपको क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन करनी है कि क्लाइंट जो कह रहा है वो किस कदर जो है वो लेजिटिमेट कस्टमर या क्लाइंट है या यूजर है, एज वेल एज हमें जो डोमेन सर्वर एक हमें ये कह रहा है कि आई एम लेजिटिमेट डोमेन सर्वर. सो हाउ बोथ एंटिटीज कैन बी डिटेक्ट कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है. तो इसीलिए आपको ये बताया गया कि क्लाइंट की सिक्योरिटी भी और डीएनएस सर्वर की भी सिक्योरिटी, और जिस सर्वर के ऊपर वो रिक्वेस्ट गई है उसकी भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो उस जोन के ओनर के पास होगी. ये सब चीजें ऐसी हैं जैसे आप समझें कि सर्टिफिकेट एक्सचेंज हो रहे हैं पब्लिक प्राइवेट कीज के साथ, उनको जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी लोकेशन भी वेरीफाई की जा रही है. तो लास्ट में क्या होगा, द इंफॉर्मेशन इज सेंट फ्रॉम अ रिसोर्स रिकॉर्ड सेट दैट इज कॉल्ड आरआर सेट. दैट मींस जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी क्लाइंट को उसको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी. So let's conclude it with the DNSSEC table. Suppose हमारे पास domain name की request आई है, that is ue.edu.pk. Time to live जो है वो ये time सारा एक ही रहेगा इस request का. आप देख रहे हैं इसकी type क्या है और इसकी value क्या होगी कि DNS शुरू में domain DNS पे check की जाएगी, dns.ue.edu.pk. यानी ये जो table create हो रहा है ये कुछ इस तरह की entries होंगी इसमें. फिर DNS की request गई है, domain name, फिर उसकी टाइप क्या है उसको आईपी एड्रेस के ऊपर लेके जाएगा. असल काम तो यही था कि उस आईपी के ऊपर लेकर आना, लेकिन सिर्फ अब ये जो आईपी है ये क्लाइंट तक पहुंचाना है. तो दो चीजें ऐड की गई हैं. पहली चीज क्या है कि जो डोमेन नेम है उसको इनक्रिप्ट किया गया है बाय अ की और उसके जरिए से एक हैश फंक्शन भी जनरेट किया गया जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है. यानी ये जो डोमेन नेम है
डोमेन नेम के अगेंस्ट आईपी एड्रेस है, उसकी इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू क्रिएट की गई है बाय यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ द जोन ओनर। उसके बाद इसी जो हमारे पास ये वैल्यू है, हैश वैल्यू है हमारे इस आईपी एड्रेस की, उसके अगेंस्ट एक सिग्नेचर क्रिएट किया गया है। और हमें ये पता है कि सिग्नेचर का मतलब क्या है, सर्वर्स के साइंड हैश ऑफ द फील्ड्स, ये सारी, ये इसकी सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास की होगी, हमारे पास ए जो हमारे आया है सोल्यूशन वो होगा, हमारे पास एनएस जो सोल्यूशन आया वो, सारे को हैश फंक्शन से गुजारने के बाद इसको, इसकी जो है मैसेज डाइजेस्ट प्रिपेयर किया है और फिर इसको इनक्रिप्ट किया गया है बाय यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ the zone owner. Thus, it is considered that when DNSSEC is fully rolled out, the user's computer is able to confirm that DNS responses are legitimate and true and avoid DNS attack launched through DNS cache poisoning. So, ये जो एक distributed and multi related association and zones create किए गए हैं इस standard को इस्तेमाल करके, उसने बहुत हद तक ये दोनों प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी, दैट वाज द डीएनएस पॉइजनिंग एंड डीएनएस स्पूफिंग। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, अटैक्स आएंगे but there should be one solution for every kind of possible attacks. So you can create one table where you can write the issues of every protocol, every application, and what is the available solution. So जैसे कि email के लिए we have different problems, and they have one systematic solution that is using the PGP or S-MIME. Then we have domain name server that has spoofing, and the second attack was the DNS cache poisoning, and the solution for this process is this standard that is called the DNSSEC. So thank you very much, students. In the coming lecture, we will discuss about HTTP security protocol, and then we will switch toward the next layer of security, that is the transport layer security. And you will definitely get to know that what are the needs of that layer and what are the possible solutions for that layer to add the security feature. So thank you very much, students, for this session.